کینسر، جی ہاں، ایک ایسی بیماری ہے جیسے ہی آپ کو علم ہوتا ہے سمجھیں کہ آپ کی دنیا اجڑ گئی، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آج ایک بڑا اہم پروگرام یوٹیوب چینل ہمارے نائمز ٹی وی انٹرنیشنل پہ آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں 40 سالہ تجربہ ہے، اور وہ بتائیں گے کہ خواتین اور مرد جو ہے جب بھی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو کیا وجہ ہو سکتی اور کیوں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا آج ہمارے یوٹیوب چینل پہ، اور وہاں پہ آپ یہ پورا پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ سے تعلق ہے کہ اگر مریض کو کیسا پتہ چلتا ہے کہ بھی اس کو کینسر ہو گیا، اس کی ابتدا کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں، کینسر کے مخصوص سمٹمز نہیں ہیں، وہی عمومی سائنز اینڈ سمٹمز ہیں جو باقی بیماریوں کے ہیں۔ اس لیے کینسر کے علاج میں بڑی تاخیر ہو سکتی ہے۔ ایک ایکرونائم کوشن CAUTION بنایا گیا ہے، لیکن عملی طور پہ میرے کوئی 40 ایئرز کا ایکسپیرینس ہے ان ٹریٹنگ کینسر پیشنٹس۔ میں ایک بات ایجوکیٹ کرتا ہوں، ایک ہی بات، کوئی آپ کے اندر بیماری، تکلیف یا علامت جو علاج کے باوجود 4 ویکس سے زیادہ پرسسٹ کرے، تھنک آف کینسر۔ میں دوبارہ بتاتا ہوں، آپ کو کھانسی ہے، آپ علاج کرا رہے ہیں، 4 ہفتے گزر گئے ہیں، کھانسی نہیں ٹھیک ہوئی، 90% چانس ہے کینسر ہے۔ TB بھی 3 ہفتے میں رک جاتی ہے۔ تو کوئی السر ہے زبان پہ، آپ نے ٹریٹمنٹ کیا، وقت گزر گیا، 3 ہفتے گزر گئے، 4 گزر گئے، آپ ٹھیک نہیں ہوئے، تھنک آف کینسر۔ یہ سب سے بڑی ایک انفارمیشن ہے۔ کوئی بھی علامت، تبدیلی کینسر کی جو ہے وہ اس طرح سے ڈیٹیکٹ ہوتی ہے۔ اور دوسری بڑی اہم بات ہے جو سب کو پتہ ہونا چاہیے، مردوں اور عورتوں کو جسم میں کوئی گلٹی بنتی ہے، خاص طور پہ عورتوں کو بریسٹ میں اور مردوں کو گردن پہ یا بغل پہ یا یہاں پہ کہیں بھی اب نارمل گروتھ یا گلٹی بنتی ہے، اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پخانے کی عادات میں تبدیلی ہو، کسی جگہ سے خون آئے، یہ ساری علامات ہوتی ہیں کینسر کی۔ آپ لوگ جس شہر میں رہتے ہیں، یہاں شاید 40 یا 50 کے بعد آپ کا بڑی آنت کے کینسر کا بھی بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اکلٹ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، عورتوں کا بریسٹ کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں شاید ابھی اگلے 50 سال تک امپلیمنٹ نہ ہوں۔ ہمیں ایڈوانس کینسر کے سٹیج کے مریضوں کو ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ معمول کی بات ہے، کینسر دنیا بھر میں تاخیر سے ہی تشخیص ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا گلٹی بنتی ہے، اس میں شروع سے ہی پین وغیرہ شروع ہو جاتی ہے نہیں، یا؟ کینسر کی گلٹی پین لیس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بریسٹ کینسر کی عورتیں دیر آتی ہیں، کیونکہ عورتوں میں جو بریسٹ میں گلٹی ہوتی ہے وہ پین لیس ہوتی ہے، تو پھر دے ٹینڈ ٹو نیگلیکٹ اٹ۔ ایسی خواتین کو فوری، اگر وہ 40 سال سے بڑی عمر کی ہیں تو اپنی میموگرافی کرائیں، 40 سال سے کم ہیں تو بریسٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اور پھر اس کی بیماری کی حتمی تشخیص ہوتی ہے وہ پیتھولوجی یا لیبارٹری میں مواد بھیجنے سے ہوتی ہے، یا سوئی کے ذریعے مواد نکالیں یا چھوٹا انسین دے کے لیبارٹری میں مواد نکالیں۔ اس کی پیتھولوجی پہ اس کا لیگل ڈیسیژن ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو آبادی تقریباً 24 کروڑ ہے، تو اس میں کتنے 1% آپ سمجھتے ہیں کہ کینسر کے مریض ہوتے ہیں؟ اور اس کا جو عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم فلانی جگہ فلانے ہاسپٹل میں لے کے گئے لیکن واپس بھیج دیتے ہیں، تو آپ لوگ اس حوالے سے کیا کریں؟ دیکھیں، ہم کسی مریض کو واپس نہیں بھیجتے سوائے ان مریضوں کے جن کا کہیں اور علاج ہو رہا ہے اور وہ علاج چھوڑ کے ہمارے پاس آئے اور ضد کرے جی ہمارا علاج کرے۔ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ 10,000 مریض لاہور میں علاج کروا رہے ہیں مختلف اسپتالوں میں، اگر کسی ایک گھنٹے میں وہ 10,000 مریض آ جائیں تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ جہاں سے علاج کروا رہے ہیں وہیں کروائیں۔ پاکستان میں جی ہر سال 4 سے 5 لاکھ افراد کینسر کا مرض کا شکار ہوتے ہیں، 4.5 سے 5 لاکھ۔ اور جب ہاسپٹلس کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تو صرف 1.5 لاکھ مریض علاج کے لیے آتا ہے، باقی مریض علاج کے لیے پہنچ ہی نہیں پاتا۔ گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اس ڈر سے کسی بھی علاج کے لیے ہاسپٹل نہیں جاتے کہ علاج کی جو اخراجات ہیں ان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ اس خوف سے لوگ اپنے والدین کو علاج کے لیے بڑے اسپتالوں میں نہیں لے کے جاتے کہ وہ جاتے ہی ٹیسٹ لکھ دیں گے اور ٹیسٹوں میں 50-40 ہزار روپیہ خرچ آئے گا۔ آج بھی کسی بھی بیماری کو جو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اٹ کاسٹ منی، پیپل کانٹ افورڈ، اور خاص طور پہ کینسر کی انویسٹیگیشنز مہنگی ہیں۔ تو ہم جی اللہ کے حکم سے کسی سٹیج کا مریض ہو، کسی جو ہے وہ مالی اس کی پوزیشن کا میں مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی ایج کا مریض ہو، سوائے اس کے کہ ابھی بچوں کا کینسر کا یونٹ نہیں بنا اور بلڈ کینسر کا یونٹ نہیں بنا، باقی تمام اڈلٹ کینسر جو ہیں اس کی کمپریہنسو ٹریٹمنٹ کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر پرووائڈ کر رہا۔
डॉक्टर साहब ये बताइए कि किस तरह आपको पता चलता है कि इस बंदे के पास इतने पैसे नहीं हैं और इसके ये हालात नहीं हैं? देखें, ऑन द लाइटर नोट ऑफ पाकिस्तान आए, आपको शक्ल देख के पता लग जाता है। देखें, बात यह है, हम लोगों को ऑनेस्ट और दुरुस्त समझते हैं। अगर एक आदमी आके कहता है मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं, तो हम उससे छानबीन नहीं करते। हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है। पाकिस्तान में अब ये रिवाज है जी कि उससे पूछते हैं तुम्हारे घर में कमरे कितने हैं, तुम्हारा किराया कितना है, बच्चों की फीस कितनी है, तुम बिल ला के दिखाओ, चेयरमैन ज़कात। दिस इज़ रिडिकुलस, दिस इज़ ह्यूमिलेटिंग ह्यूमन बींग्स। पाकिस्तान में ऑफिशियली गुर्बत है भाई। जो आदमी आके कहते हैं मेरे पास इलाज के पैसे नहीं, उसके पास नहीं है भाई। जिसके पास होते हैं वो कहते हैं। कितने फीसद डॉक्टर साहब मरीज जो सेहतमंद होकर आपके हॉस्पिटल से चले जाते हैं, कितने फीसद होते जी, हैं? मैं कुछ अर्सा अमेरिका में भी रहा हूँ। अमेरिका में क्योर रेट इज़ 35%। 65% पेशेंट्स आर नॉट क्योर्ड, बट अमंग्स नोट 65 हम 50% की लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है सिग्निफिकेंटली। हमारे यहाँ क्योर रेट 25 से 30% है। 100 में से 30 अफराद क्योर हो जाते हैं, ऐसे कि जैसे कभी कैंसर हुआ ही नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर का क्योर रेट 90% चला गया हुआ है। ये ट्रेजेडी है ब्रेस्ट कैंसर की, औरतों को इलाज ना मिलना। वो एक औरत नहीं तबाह होती, एक ख़ानदान बर्बाद होता है। एक औरत का फौत हो जाना एक ख़ानदान के लिए बहुत बुरी बात होती है। औलाद, उसकी बच्चियाँ तबाह हो जाती हैं। पाकिस्तान के सोशल फैक्टर्स देखें, सर पे माँ नहीं है तो बेटियाँ ज़ाया हो जाती हैं। ये हमारे बहुत कल्चरल इश्यूज हैं। तो एक माँ की ज़िंदगी बचाना, हम समझते हैं एक ख़ानदान की ज़िंदगी बचाना है। इसीलिए हमारी स्ट्रगल है, ये चीखो पुकार है कि हमारे पास अल्लाह ने 27 एकड़ ज़मीन दी है। हमारे पास मुल्क के तमाम सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। हमारी रेडियोलॉजी सर्विसेज की मैंने बात नहीं की, वो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। हम एक आइंदा अगले आने वाले सालों में अपना चौथा ब्लॉक जो बनाएंगे, वो हम पाकिस्तान का पहला ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। देखें, 1924 में गुलाब बेली अस्पताल बना टीबी के लिए, ये उससे ज़रूरत थी। आज औरतों में ब्रेस्ट कैंसर टीबी की तरह फैला हुआ है और उनको इलाज गाह नहीं है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया और आप लोगों ने साथ दिया, तो हम पाकिस्तान का पहला ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल भी बनाएंगे। सर, ये तो मुझे लगता है प्रेस वाले हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल आखिरी, डॉक्टर साहब एक सवाल को सवाल करने दें, ऑडियंस को सवाल डॉक्टर साहब आखिरी सवाल मेरा, आखिरी सवाल है, उसी में 2 सवाल हो जाएंगे, उसी दो में के जवाब 4 हो देना। जाएंगे, नहीं, करें आप, मुझे पता अच्छा, है। मेरा पहला सवाल ये कि गिल्टी जो है, ये बाज़ दफ़ा किसी को दर्द नहीं होता, उसके बारे में बताएं। दूसरा ये कि जब आप ऑपरेशन करते हैं किसी लेडीज़ का, उसकी छाती को ऑपरेशन करते हैं, क्या दोबारा हो सकता है? दोबारा बिल्कुल। देखें, हर गिल्टी कैंसर नहीं होता, लेकिन हर गिल्टी को बगैर तसल्ली किए छोड़ा नहीं जा सकता, ख़ास तौर पे अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है। पेट पे या थाइस पे जो फैट की गिल्टियाँ होती हैं, लोग उससे डर जाते हैं, वो गिल्टियाँ नहीं होती। जो गर्दन पे या बगल में या इस संगवाइनल रीजन पे बनती हैं गिल्टियाँ, वो ख़तरनाक होती हैं। तो उनका जो है उसकी बायोप्सी करवा के फिर तसल्ली होती है। दूसरा, जब औरत में ब्रेस्ट का ऑपरेशन करते हैं ना जी, तो उसमें रिकरेंस के चांसेस बड़े कम होते हैं। हमारे यहाँ एक ख़ास है जी कि हमारे जो डॉक्टर साहब ब्रेस्ट का ऑपरेशन करते हैं, ही इज़ ए सर्जन फ्रॉम बर्मिंगम, प्रोफेसर हमाद रज़ा शेख। मैंने उनसे बात की तो जज्बाती हो गए कि मैं तो यार छोड़ के पाकिस्तान आ रहा हूँ, इतना कैंसर है और औरतों को सहूलत नहीं है। वो जी हमारे पास आ गए और टिक गए हैं, और 2000 कैंसर का वो इलाज, ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन कर चुके हैं। बर्मिंगम ट्रेन ने पूरी ब्रेस्ट नहीं काटते, ब्रेस्ट कंजर्वेशन करते हैं, छोटा सा पीस निकालते हैं ब्रेस्ट का, औरत अच्छी भली हो जाती है। इसलिए हमारे अस्पताल को पूरे पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के लिए लोगों का रश पड़ता है। हमें सपोर्ट करें, हमें डोनेट करें, हमें ज़कात दें, हमें एहतियात दें, ताकि हम आपके बिहाफ पे आपकी मोहब्बतें वहाँ पहुँचा सकें। और आप मेहरबानी करें, आप तशरीफ रखें और ऑडियंस में से किसी एक सवाल डॉक्टर साहब ये बताइए, जो साहब हैसियत लोग होते सवाल आ गया। अच्छा, जो मेडिकेशन यहाँ पे कीमोथेरेपी के लिए दी जाती हैं, ये यूएसए में, वो आपके हॉस्पिटल में मौजूद है? जी हाँ, वो अमेरिका में बाद में ऑफिशियली पहुंचती हैं, हमारे यहाँ स्मगल होकर भी पहुंच जाती हैं पहले। इन पाकिस्तान वी गेट ए क्लास ट्रीटमेंट, बट द प्रॉब्लम इज कि जो कीमोथेरेपी मेडिसिन है वो इतनी एक्सपेंसिव है, और वो हम उसको, चैरिटी हॉस्पिटल है, हम प्रेफर करते हैं कि क्यूरेटिव इंटेंट से दें, सिर्फ इस इंटेंट से कि ज़िंदगी 2 महीने बढ़ जाए। NHS भी नहीं देता, ठीक है, पेम्ब्रोलुज़ुमैब NHS ने नहीं अप्रूव की बड़ा अरसा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखते हैं।
तो हमारे यहाँ हर तरह की कीमोथेरेपी अवेलेबल है, हर तरह का एक्सपर्टीज है सर। How do you keep up to date with the latest technology in cancer or cancer therapies? How do you? देखिए ये एक अजीब सी बात है। दिस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। हम जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हम पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। मेरा ख्याल है ये जो दुनिया गोलमोल सी है, मैं 4 दफ़ा घूम चुका हूँ। I've been presenting in every international conference. My own publications are above 100. I've presented in more than 350 international conferences. हमारे सारे डॉक्टर साल में 2 दफ़ा लाजमी है कि कॉन्फ्रेंस में जाएं। हम उसको फैसिलिटेट करते हैं इसको। फिर एक और सर्विस है कि अब तो इंटरनेट के ऊपर जिस तरह आप ऐप्स देखते हैं, हमारे पास 10 साल से ना अप टू डेट सर्विस है। उसमें दुनिया में जो कैंसर की डेवलपमेंट होती है हमें रात पढ़ने को मिलती है। हमने वो पे करके सर्विस अपने डॉक्टर्स के लिए ली हुई है। ऑल ओवर डॉक्टर्स आर वेरी अप टू डेट। हमारी जी ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं। हमारे अस्पताल में 3 लाइब्रेरीज हैं। एक तो बुक लाइब्रेरी है, एक रीडिंग लाइब्रेरी है, एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। उसमें इंटरनेशनल जर्नल्स अवेलेबल है। सर मैं एक आखिरी गुजारिश करूँ, अगर मैं 4 घंटे भी बोलता रहूँ तो जो अस्पताल आके देखते हैं, देखा के जो समझ आती है वो 4 घंटे में उसका 10वां हिस्सा नहीं समझ आएगी। इट इज़ द लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन पाकिस्तान and it is going to be a regional cancer center like IGR, Institute Gustave Roussy, Paris, Royal Marsden और क्रिस्टी हॉस्पिटल। हम इस लेवल की बात कर रहे हैं। हम ऑलरेडी अक्रॉस द ग्लोब पेशेंट्स को कैटर कर रहे हैं। हमारी फैकल्टी सबसे सीनियर है। हम सब सीनियर एक्सपीरियंस लोग हैं। शौकत खानम इज रन बाय माय सेकंड ईयर, फैसल इज माय स्टूडेंट, आखिर मेरे बच्चे चलाते हैं। आई एम द फर्स्ट ऑन्कोलॉजिस्ट इन द कंट्री। लेकिन बात यह है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम अपने तारफ की बजाय अपनी सर्विसेज बताना पसंद करते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग ए क्लास सर्विसेज। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपका कोई सवाल आखिरी हो ही नहीं, नहीं ये आखिरी है। ये बताइए जिनके पास पैसे होते हैं वो भी वहाँ इलाज के लिए आते हैं या गरीब ही आते हैं? बड़ा अहम सवाल है जी। अमीर लोग आते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि ज़कात तो हम नहीं लेंगे, तो हम उनसे कहते हैं जी आप इलाज कराएं, इसके बाद आपका जो दिल करे डोनेट कर दें। और ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं कि अपने इलाज के साथ 10 और मरीजों का इलाज के पैसे दे के जाते हैं। आप यकीन करें कि महीने में एक आदमी ऐसा आ जाता है जो 25 लाख या 50 लाख रुपए देता है। हम उससे कहते हैं जी रसीद, कहता है रसीद नहीं चाहिए। हम रसीद के बगैर पैसे नहीं लेते, हम इंसिस्ट करते हैं। झगड़ा होता है, कहते हैं जी रसीद हमने काटनी है, आप कटवाएं। कहता है जी लिखे, नाम क्या है? नाम अल्लाह का बंदा, एड्रेस क्या है? अल्लाह की ज़मीन, और वो चला जाता है। 25 लाख 50 लाख तो आम ही बात है। बाज़ दफ़ा तो हम डर जाते हैं। एक शाम ये सच्चा वाक़या है, मैं गजाला हम बैठे, एक बहुत बड़ा बिल आ गया कंस्ट्रक्शन का 2.5 करोड़ रुपया। हमारे पास 25 लाख कम थे। हम कह रहे अल्लाह तो अपनी जनाब बिचो सोनू पैसे दे, दुआएं मांग रहे हैं। सारे लोग बैठे, बाहर एक आदमी शलवार कमीज में चप्पली में बैठा हुआ। मैंने अल्लाह माफ़ करे मैंने इग्नोर किया कि शायद कोई ज़रूरतमंद आया है। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा यार इसको 10 मिनट हो गए, क्या बात है, इससे पूछो क्यों आया है? कहते जी मैंने डोनेशन देनी है। मैंने फिर तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा जी अकाउंटेंट के पास ले जाए। कहता नहीं जी मैंने इधर ही आपको देनी है। मैं कहा दें। उसने कैश निकाल के 25 लाख रख दिया। हमारे आंसू आ गए, वो रोने लगे। मैंने कहा जी आप कौन है? कहता अल्लाह का बंदा। मेरा टाइम हो रहा है। भाग गया। तो बात यह जी कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए अच्छे लोग हैं कि आप भी वहीं से आए हैं ना। चले बहुत तो आप शुक्रिया अच्छे हैं डॉक्टर। ना, तो आपके पीछे भी लोग अच्छे हैं। अब मैं महफिल का इख्तिताम डॉक्टर साहब शुक्रिया बहुत। बहुत